Okay, so welcome to another session of class 9th maths course. So we have finished two sessions already. In this session, we are going to talk about exercise 1.4. We have done exercise 1.1, 1.2, and 1.3. Uh, Before we start with exercise 1.4, let's dive into some properties of rational and irrational, which I've already covered. So let's review it again so that we can do this exercise properly. First of all, whenever there is a sum of rational and an irrational number, I've already told you, it is always what? It is always irrational. Remember? Oh, the spelling of irrational. Irrational. The difference of rational and irrational. This will be very useful in our coming exercises, especially in the example questions. So we need to understand this. It is always irrational also. Now, here were some limitations. If it is rational into irrational, then if you recall, it can be rational और irrational. बट अगर इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन आ जाता है। क्या एक्सेप्शन होता है कि अगर हम लिख देते हैं नॉन जीरो कि वो नॉन जीरो है, कि जीरो नहीं हो सकता है, नॉन जीरो रैशनल इनटू इरेशनल इज ऑलवेज व्हाट? इज ऑलवेज इरैशनल। ये एक्सेप्शन था जो हमने बताया था आपको लास्ट सेशन में। देन रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, दैट इज डिवाइडेड बाय इरेशनल, is also what? Is also what? Irrational. Rational और irrational. My bad. Rational और irrational. हमने एक एग्जांपल भी करे थे इसके केसेस के लिए कि कोई एग्जांपल लेके ऐसे एक्सप्लेन करना। इसका भी एक्सेप्शन क्या है कि अगर नॉन जीरो होगा तो हमेशा इरेशनल देगा। नॉन जीरो रैशनल, जीरो रैशनल डिवाइडेड बाय irrational is always what? Is always irrational. तो ये आपको पता होना चाहिए बिफोर वी डू दिस एक्सरसाइज। हालांकि ये एनसीईआरटी लेवल के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम्पलर में हम करेंगे तो मैं अभी इसी चार्ट में बता देता हूँ कि अगर हमारे पास इरैशनल का सम होगा इरैशनल से, तो वो रैशनल इरैशनल दोनों दे सकते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा? लेट्स से दोनों की दोनों सेम है। ठीक है, तो क्या होगा? जीरो, जीरो रैशनल हो गया। लेकिन अगर दोनों के दोनों अलग हैं तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो डेसिमल्स में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। रूट 5 नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सम वैल्यू आएगी। सो वो क्या हो जाएगा? इरैशनल। सो रैशनल रैशनल दोनों आ सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंस में भी, ऐसे प्रोडक्ट में भी, और ऐसे ही डिवीजन में भी। तो ये जो प्रॉपर चार्ट बनाया, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड चार्ट फॉर द concepts. Okay, so let's start with exercise 1.4. Then we are going to do more concepts. So first question, classify the following as rational and irrational. Let's say we have first 2 minus root 5. We already know that the 2 is a rational number because it can be written in p by q form, isn't it? So this is a rational number. And square root of 5, we know that is an irrational number. We know that the difference between a rational and irrational is what? Is always irrational. So that's why the first number is classifying as irrational. Let's move on to the second question. Now, whenever you solve a question, it's better to simplify it first. Here, you cannot simplify it further. Of course, you can plug in the value of root 5, but we are not doing that. Okay. I meant simplification say yes step. Just say we have this bracket solving. So we have 3 plus root 23 minus root 23. So root 23 cancel out with root 23 and we are left with 3, which is a rational number. So that's why over here it is a rational. So पहले simplify करना है। जैसे थर्ड वाले में भी अगर हम देखेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन सेज 2 root 7 over what? Over 7 root 7, right? 7 root 7. So this will cancel out. So 2 by 7 is a rational number. Rational number. Now over here for the fourth part, if we see 1 over root 2, so 1 एक रैशनल नंबर है और root 2 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का हम डिवीजन करते हैं रैशनल से, we get always what? We get always, remember over here, अगर आपने एक रैशनल को लिया और एक इरेशनल को लिया तो यहाँ पे इरेशनल आएगा। यहाँ पे स्पेशली सर आपने तो यहाँ पे लिखवा रखा है कि रैशनल डिवाइड बाय रैशनल या फिर रैशनल, लेकिन इसमें जीरो वाला भी केसेस था। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि 1 है, तो यहाँ पे हमेशा ये इरेशनल आएगा। ठीक है, ये इरेशनल क्यों आएगा और स्पेसिफिकली मैं इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, फिफ्थ वाले के। ठीक है,
लेकिन अभी के लिए याद रखें ये वाला इरेशनल आएगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ, दैट इज 2 पाई। इससे पहले पाई के बारे में बात करते हैं, फिर हम समझेंगे इसको। अब ये पाई वैल्यू क्या है? यूजली वेन एवर आई टॉक विद विद द स्टूडेंट्स, I get to hear this word 22 by 7 pi होता है. No, that is not pi. That is just an approximation which is used to calculate and to make our work easier in maths. Pi, if you want to know what is pi, let's know the circumference. If I hope you know the formula for the circumference of circle, which is 2 pi r, and diameter is nothing but double of the radius 2r. So diameter is 2r. So when you take the fraction, that is the ratio of these two, 2 pi r divided by 2r, you get something which is known as pi. So this is pi. Pi is nothing but the ratio of circumference the diameter. The best definition for anyone to answer with the pi is circumference over diameter. So हमेशा याद रखना pi जो होता है circumference over diameter होता है। देखिए अगर 22/7 करके ऐसा कोई देता है नॉर्मली कोई फ्रैक्शन, तो ये तो रैशनल होगा। लेकिन अगर कोई बोले कि पाई क्या है, तो बोलेंगे पाई एक इरेशनल नंबर है, हमेशा ध्यान रहे। क्योंकि पाई की एक्चुअली जो वैल्यू आते हैं 3.1415 एंड सो ऑन चलती जाती है, ना ही ये टर्मिनेट होती, ना ही ये रिपीट होती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एंड दैट इज व्हाई पाई इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब आप ये भी जस्टिफाई करने चाह सकते हैं कि पाई की वैल्यू सर सी बाई डी आपने बोली, सी बाई डी इज अ रेशियो, फ्रैक्शन है, ये रैशनल नंबर होना चाहिए नहीं। तो सर्कमफ्रेंस जो आप मेजर करेंगे ऐसे करके, तो आपको परफेक्ट नंबर नहीं देगा ये, वो आपको ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ही आएगा, क्योंकि ये सर्कुलर मैनर में है। तो ये इरेशनल होगा, और डायमीटर जो है आपको प्रॉपर रैशनल मिल जाएगा ऑलमोस्ट, वो भी हो सकता है इरेशनल मिले। तो रैशनल अगर एक भी रैशनल हो जाता है तो इरेशनल मिलने के चांसेस होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इरेशनल नंबर होता है अगर ज्यादा डेप्थ में जाना है। ओके, बिकॉज वी विल डू दिस इन थर्ड क्वेश्चन आल्सो। So pi is an irrational number. Just remember this. If you didn't get the entire stuff, but you remember that pi will is an irrational number. So if fifth is 2 pi, so 2 into pi, that is 2 is rational, and this is irrational. So this will be what? This will be also irrational. सो यहाँ पे आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि रैशनल इंटू रैशनल, रैशनल इरेशनल दोनों होता है। तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है दोनों, ठीक है? वो कब होता है दोनों? जब यहाँ पे जीरो भी होता, अगर जीरो होता, जीरो मिल जाता तो रैशनल जरूर देता, लेकिन ऐसा केस नहीं है, इसलिए आप इरैशनल ही बोलेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ दिस रैशनल इरैशनल इज इरैशनल। ठीक है, ओके, दिस इज डन नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स आर डन। और अच्छे से क्लियर होगा जब हम फिफ्थ वाला रैशनलाइजेशन वाला पार्ट कर लेंगे। अभी हम कुछ सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं आगे। बिफोर सेकंड क्वेश्चन, we are going to do some identities which we are going to study deeply in depth in polynomial chapter, but अभी के लिए बेसिक कर लेते हैं। अगर मेरे पास a प्लस बी इंटू होता है c प्लस डी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद b को इससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, ये आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, एट्थ क्लासेस में, फैक्टराइजेशन एंड ग्रुपिंग और सब चैप्टर में, bc, और ये क्या होगा bd। So this is how the first kind of a question is there. Then agar you have a plus b and a minus b, that is written as a square minus b square. You have also done this one. Then if you have a plus b whole square, this is known as a square plus 2ab plus b square. And the last one, if you have a minus b whole square, अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, वैसे और भी हो सकता है, a square minus 2ab plus b square। इस एक्सरसाइज के लिए इतना यूजफुल है। So ये आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। In the polynomial chapter, we will also prove these identities. We will not mug it up. For the timing, we are just going to use in one question, so we are not doing the derivation part for now. So second question, first part, simplify each of the following. So 3 plus root 3, and then we have 2 plus root 2. So let's open it up. Remember, before we move on, that if we have root m into root n, this is always root m into n. Okay, so if I'm going to open this up, this is of the first form, if you can see, right? So if I open this up, this will be 3, 2 plus root 2, then root 3, 2 plus root 2. So आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 to the 6 हो जाएगा, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 into root 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा नंबर पहले लिखा जाता है फिर स्क्वायर रूट वाला, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो कोई भी लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म का मतलब अगर ऐसा कुछ होता तो ये दोनों मिला के 5 रूट 2 हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है लाइक टर्म, तो इतना ही सॉल्व होगा, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ओके, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि 3 प्लस रूट 3 ए प्लस बी और 3 माइनस रूट 3 ए माइनस बी। सो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बताया था यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी गोना राइट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 3 दैट इज 6,
and that is the answer. Very easy. Now, third part, you can also solve this using this criteria. Okay, that you will get the same answer, but this is one is quicker. Now, third part says that root 5 plus what? Root 5 plus root 2. But there is one thing that whenever you're using an identity, you mention in the bracket that using a square minus b square, which is equal to a plus b minus b. Okay, that's a preferred notion. You should do this. So root 5 plus root 2. So a plus b whole square, that is a square plus 2ab, 2ab plus b square. So we are going to get root 5 का स्क्वायर 5. जब भी रूट 5 को स्क्वायर का मतलब रूट 5 को रूट 5 से करना है तो रूट हट जाता है, 5 ही बचेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो पावर होती है एक्सपोनेंट की हाफ होती है। आपने पावर एक्सपोनेंट क्लास 8th में पढ़ रखा है, तो पावर्स ऐड होती है जब सेम बेस होता है। हालांकि मैं लास्ट एक्सरसाइज में फिर से पढ़ाऊंगा। 5 की पावर 1 बन जाती है, 5 की पावर 1 5 ही होता है। सो इन अ वे यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर, इफ स्क्वायर रूट का अगर सेम स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है। सो 5 आया और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 रूट 10 हो जाएगा। एंड दिस विल बी रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 7, सॉरी, रूट रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2। So 5 plus 2 will be 7. 7 plus 2 root 10 will be the answer for the third part. Now for the fourth part, we have uh, 5 minus root 2, and then we have 5 plus root 2. It doesn't matter if you have 2 into 3 और 3 into 2, बात एक ही होती है। फिर भी 6 आएगा और 3 into 2 से भी 6 ही आता है। तो अगर हमारे पास a plus b, a माइनस बी है, तो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और इसको आगे लिख दो क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है, तो भी फर्क नहीं पड़ता है, यू विल गेट द सेम आइडेंटिटी, दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So we are going to write a square minus b square. And how we are going to do that? 5 का square minus root 2 का square. 5 का square 25, root 2 का 2, and this will be 23. And 23 will be the answer. So if you know all these four identities, actually identities or whatever you want to call them, you can solve them very easily. Now let's move on to the third question. Third question, the pi thing that I was talking about. Let's read the question carefully. Recall pi is the ratio of circumference to the diameter. I told you also, right, how the pi came about. Ratio of circumference to the diameter. This seems to contradict that pi is irrational. ये contradict कर रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि एक ratio of numbers है, right? Fraction में है तो ये rational होना चाहिए. But the problem here is why this is a contradiction. यहाँ पे we will write that when we calculate circumference, we calculate to approximate value, और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इसीलिए आपको लगता है कि इसमें होगा, लेकिन वो वैल्यू बहुत नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। आप ऐसे मेजर करेंगे ऐसी कोई चीज को तो ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटली करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ये इरेशनल अपॉन रैशनल टाइप कुछ बन जाता है और इसलिए इरेशनल होता है, ठीक है। तो पाई हमेशा इरेशनल इसलिए होता है। बिफोर द फोर्थ क्वेश्चन वी विल डू द फिफ्थ क्वेश्चन, बिकॉज फोर्थ क्वेश्चन को मैं सेपरेटली कंसेप्ट में पढ़ाना चाहता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे क्या? रैशनलाइजेशन। सो इस एक्सरसाइज में एक्चुअली तीन कंसेप्ट हैं अगर हम ध्यान से देखें, राइट। वन इज क्लासिफिकेशन की रैशनल इरेशनल बताने वाला, दूसरा वन इज रैशनलाइजेशन, एंड थर्ड वन इज प्लॉटिंग ऑफ एनी रियल नंबर और नंबर लाइन। हमने इरेशनल नंबर को प्लॉट करना सीखा था। अब व्हाट इफ देयर इज एनी रियल नंबर, मतलब डेसिमल वाला भी हो तो कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, इसके भी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब कि वी डोंट लाइक डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट। If there is a square root in denominator, you will rationalize it. Why we don't like square root in denominator is it makes our calculation longer when we go into higher mathematics. So it's better to rationalize the denominator in order to make our calculations easier. So suppose we have something like this, root a, 1 upon root a. तो आपको अगर इसको rationalize करना है तो you have to multiply this with same number in the numerator and denominator. तो क्या होगा, root a into 1 root a हो जाएगा और रूट ए इंटू रूट ए बन जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हट गया, न्यूमरेटर में हो सकता है, डजंट मैटर, डिनोमिनेटर से हटना चाहिए। इट कैन बी इन अनदर फॉर्म, व्हाट अनदर फॉर्म इट कैन बी, रूट ए प्लस बी। तो आप क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट का मतलब होता है साइन चेंज करना बस। सो कंजुगेट कहते हैं बड़ी क्लास में, माइनस बी हो जाएगा रूट ए माइनस बी। अब ऊपर तो सेम हो जाएगा, लेकिन नीचे ध्यान से देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है आइडेंटिटी। डोंट गेट कंफ्यूज विद ए और ए फिर से ऐसे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सो रूट ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। सो whenever you have to rationalize like that, so हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक और है, लेट्स से माइनस वाला होता तो क्या करते हैं, अगर माइनस वाला होता
तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? तो अगर वी हैव इधर माइनस वाला, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद प्लस गाय, राइट? सो आपको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, सेम चीज विल फॉलो। एंड देन इफ वी हैव दोनों में स्क्वायर रूट, लेट्स से दोनों में स्क्वायर रूट है कि 1/√a प्लस √b, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे √a माइनस √b से। √a माइनस रूट हमेशा कंजुगेट से साइन चेंज कर देता है, और माइनस होता है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, जो हम कर रहे हैं बार बार, इसको कहते हैं हम रैशनलाइजेशन। अब देखते हैं क्या हमें क्लियर हो गया, कैन बी अप्लाइड टू द क्वेश्चंस, इज वेरी वेरी इजी। So this chapter is of 10 marks, and we are very close to fetch full marks in this chapter. So let's rationalize. We are going to multiply with √7. In the numerator, it will be √7, and √7 into √7 will be 7. Exactly the first kind, right? The second kind. Whenever the square roots are both, so remember, अगर दोनों में नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप प्लस से मल्टीप्लाई करिए, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, प्लस √6. So this will be √7 plus √6 over a minus b a plus b, that is a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर क्या 7, इसका 6, तो √7 प्लस √6 कितना होगा ओवर 1। नीचे 1 लिखे ना लिखे बात नहीं। बाय द वे, देयर इज अ वेरी मच ट्रिक फॉर इट। whenever whenever you square these, अगर हम √7 का स्क्वायर करें 7, √6 का 6, अगर दोनों में अंतर एक है, तो आप हमेशा उसको अगर रैशनलाइज करना है तो उसका कंजुगेट ही इसका रैशनलाइजेशन आएगा। देखिए, इसको जब आपने रैशनलाइज किया तो इसका रैशनलाइजेशन ये आया। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। लेट्स से आई हैव समथिंग लाइक दिस, 1/4 माइनस रूट, सॉरी 1/2 माइनस √3। मैंने बोला इसका रैशनलाइजेशन क्या होगा, तो आप 2 का स्क्वायर देखिए क्या होगा 4, √3 का 3, दोनों का अंतर एक है। तो इसका जब आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो सीधा आप कंजुगेट वाला पार्ट, ये इनमें ट्रिक अप्लाई होती है बस। ये स्क्वायर्स के बीच में डिफरेंस का अगर 1 है तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर द ट्रिक। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। इन द थर्ड पार्ट वी हैव 1/√5 प्लस √2, सॉरी प्लस 2। कैन यू सी दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स, इसका 5 आएगा, इसका 4 आएगा, इज 1। तो इसका जो हमारा रैशनलाइजेशन वाला पार्ट आएगा, वो आएगा √5 माइनस 2, कंजुगेट आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, इज इट करेक्ट और नॉट? करेक्ट ही होगा ऑब्वियसली। लेट्स मल्टीप्लाई विद √5 माइनस रूट बाय माइनस 2, √5 माइनस 2, साइन चेंज करना होता है बस। तो ऊपर हो जाएगा √5 माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो √5 माइनस 2, √5 का स्क्वायर 5 और इसका 4, तो √5 माइनस 2, 5 माइनस 4 इज 1, सो √5 माइनस 2, दैट इज द आंसर। एंड टोल्ड यू ऑल्सो बिकॉज कंजुगेट ही आएगा, बिकॉज स्क्वायर्स के बीच में डिफरेंस 1 है। नेक्स्ट, फोर्थ वाला कहता है 1/√7 माइनस 2, इज इट? माइनस 2, 1/√7 माइनस 2। अभी स्क्वायर के बीच में अंतर जो है वो एक का नहीं है, 3 का हो चुका है, तो आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, आपको नॉर्मली रैशनलाइज करना है। व्हेन वी रैशनलाइज इट नॉर्मली नाउ, सो यू गेट √7 प्लस 2, एंड यू गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट? सो √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 4, दैट इज √7 प्लस 2 over 3, and that is our answer. So we have done all the 4 parts of these formats only they were. This is the format, and we have completed the fifth question, the third one, the first one, the second one. Now we are going to do the fourth one, which is the most important question in this exercise. That's why it was left as the last one. Okay. Now, हमने इस इरेशनल नंबर को प्लॉट करना हमने सीख लिया है। व्हाट इफ इट इज अ रियल नंबर, मतलब डेसिमल वाला भी हो सकता है। तो अभी मैं बस आपको फॉलो करना है स्टेप्स जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आई विल टेल यू व्हाई दिस एक्चुअली वर्क्स एवरी टाइम व्हेनेवर वी डू दिस। आई विल प्रूव इट आल्सो दैट व्हाई दिस इज वर्किंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्लॉट इट, एंड वी गोना सी कि ऐसा क्यों है। बस आप बेयर करेंगे फॉर अ मिनट कि व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड हाउ, दैट विल बी एक्सप्लेन थ्रू द प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू सम स्टेप्स। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एंड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सो यूजुअली क्या होता है कि स्टेप्स के नंबर होते हैं। तो आपको अपने टीचर से पता करना है कि स्टेप मार्किंग है नहीं है। स्टेप्स मतलब कि कंस्ट्रक्शन के आंसर स्टेप्स लिखे जाते हैं। तो अगर वो 4-5 नंबर का होता है तो 3 नंबर की कंस्ट्रक्शन, 2 के स्टेप्स के होते हैं। तो ऐसे आपको अपने टीचर से पूछना पड़ेगा। ओके, सो यूजुअली आई प्रेफर कि माय स्टूडेंट्स आर राइटिंग द स्टेप्स। सो मार्क अ लाइन सेगमेंट, लेट्स से OB is equal to 9.3 ऑन नंबर लाइन। इसको हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करना है बाय द वे। तो मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में आई एम गोइंग टू राइट द स्टेप्स।
and on the right hand side I'm going to do the construction. Okay, and I'm doing roughly. You can use a compass also for this. I will try my best कि आपको यहीं से समझ में आ जाए. Okay, so आपने क्या किया, स्केल से 9.3 बना लिया ऐसे. ओके, नाउ द सेकंड स्टेप क्या है देखते हैं. सेकंड स्टेप, मार्क, अच्छा इसको नेम भी कर दीजिए, इसको नेम कर दीजिए ओ, और लेट्स से बी, जो भी ना, ए बी भी कर सकते हो, बी कर दिया तो ई बी भी कर सकते हो, जो भी करना चाहो. मार्क, मार्क पॉइंट, पॉइंट सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम बी. ओके, आपको अब क्या करना है, स्केल लीजिए और यहाँ से इसको 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दीजिए. मतलब ये 1 सेंटीमीटर और आगे तो सी तक हो गया. तो अगर मैं टोटल बोलूँ तो टोटल ये 10.3 हो गया. ठीक है, इस तरीके से, राइट. टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 10.3. स्केल से ही, डिवाइडर से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया. थर्ड स्टेप, आई एम गोइंग टू राइट यूजिंग दिस पेन ओनली. फाइंड द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ओसी, यस ओसी 10.3 का, नॉट ओवी का, एंड मार्क इट एज डी, मार्क इट एज डी, एज डी. मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, आपने बचपन में भी सीखा हुआ है. आप क्या करेंगे, आप कंपास को लेंगे. कंपास को आपको क्या करना है, नीडल वाला पार्ट यहाँ पे रखिए, और जो आपका पेंसिल वाला पार्ट है आप उसको ओपन करिए मोर देन हाफ. याद रखिए, मोर देन हाफ आप ओपन करेंगे. तो यहाँ तक ओपन कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं. ठीक है, जब आप ओपन करेंगे तो इस कंपास को आप पहले यहाँ पे रख के एक कट ऊपर लगाएंगे ऐसे, और एक कट नीचे लगाएंगे. आई होप आपको याद है, आप ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे, वही वाला स्टेप. फिर नीडल को यहाँ पे रखेंगे कंपास की, एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे, एंड यू आर गोइंग टू जॉइन इट यूजिंग व्हाट, यूजिंग अ स्केल बेल, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट. आई एम डूइंग रफली, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है. दिस इज माय पॉइंट डी, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस entire line segment. Now let's move on to the fourth step. You have find out the midpoint. Draw a semicircle. Draw a semicircle on OC, on OC, while taking D as its center. आपको OD, D पे सेंटर रखना है. इतना कंपास को ओपन करना है. देखिए, पेंसिल वाली साइड यहाँ रखनी है अब, और यहां से आप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे. जब आप ऐसे घुमाएंगे कंपास को तो वो यहाँ पे आके टच होना चाहिए. अगर यहाँ टच नहीं हो रहा है मतलब आपने कंस्ट्रक्शन गलत किया है. सो यू आर रोटेटिंग दिस एवरीवेयर. ओके, सो इफ यू वांट द लिंक where we have done using the compass, it is available on my YouTube channel also. वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ये मैंने प्रॉपर कंपास से किया है, लेकिन इन द कोर्स वी आर डूइंग इट नॉर्मली. ओके, ना ये वाला YouTube चैनल है, एक YouTube चैनल ये वाला है जिसपे आप फाइंड कर सकते हैं. ओके, so you will find it there also. Now when you have done this construction, square root 2 3 4 वो सारा कर रखा है वहां पे. ठीक है, ओके, ये हो गया. अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. सेमी सर्कल बना दिया है, उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर टू लाइन ओसी पासिंग थ्रू बी. मतलब आप क्या बनाएंगे, यहाँ से स्केल लीजिए और यहाँ से सीधा सीधा स्केल से ऐसे लाइन बना दीजिए, परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये यहाँ पे कहीं टच करेगा, लेट्स कॉल इट अ पॉइंट डी. ठीक है, सो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप हम क्या, कि लेट इट इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल एट, लेट इट, खुद से आप स्टेप्स लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश के इतने नंबर नहीं. लेट इट इंटरसेक्ट, जैसे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वैसे लिखते जाइए, मैं भी वही कर रहा हूँ. लेट इट इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल एट ई. हो गया. अब आप क्या करेंगे, ये बन गया. अब ये जो आपको मिला है ना, यही आपका एक्चुअली रूट 9.3 है जो आपको चाहिए था. वो क्यों है वो समझाऊंगा मैं. लेकिन ये अभी भी हवा में, और आपको पता है मैंने स्क्वायर रूट 2 3 5 7 में बताया था कि आपको प्लॉट कैसे करना होता है, प्रोजेक्शन. आप कंपास को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ तक ओपन करेंगे, फिर यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे. लेट्स कॉल दिस पॉइंट एफ. ये जो पॉइंट एफ है, कहाँ से कहाँ तक, अब ये जो बी एफ होगा, बी और एफ दूरी, यही रूट 9.3 होगा. सो इसको कैसे लिखेंगे स्टेप को, सेवन स्टेप, टेकिंग बी एस सेंटर, बी पे रखा था हमने कंपास, फिर घुमाया था, एंड बी ई एज रेडियस. जो घुमाया जाता है जितना ओपन करके वो रेडियस होता है. आपने देखा आपने कंपास कितना ओपन किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट. सो बी एज रेडियस,
ड्रॉ एन आर्क जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं हम, इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन एट एफ एंड एट स्टेप, जो लास्ट में जो हमें आ गया बी एफ इज 9.3 एंड दैट्स इट. दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप इट इज क्लियर. एक बार मैं नॉर्मली क्लियर कर देता हूँ. क्या करते हैं, पहले आपने जो भी लेंथ दे रखी है वो बनाया, 1 सेंटीमीटर आगे और बनाया, इसका मिड पॉइंट निकाला. जब मिड पॉइंट निकाला तो यहाँ पे नीडल रख के सेमी सर्कल बनाया, वो यहाँ पे टच करेगा. फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया ये वाले पॉइंट पे, परपेंडिकुलर बनाया, यही आपका जो आंसर होता है. इसका प्रोजेक्शन ले दिया ऐसे करके, प्रोजेक्शन कंपास से यहाँ पे रखा और कंपास को ऐसे घुमाया ओपन करके यहाँ तक ऐसे घुमाया, तो ये जो मिलेगा ये आपका रूट 9.3. इन लेमन टर्म्स दैट इज व्हाट वी हैव डन. नाउ वी गोना अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग दिस. एक्चुअली रूट 9.3 ऐसे हमें क्यों मिल जाता है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट. सो लेट्स प्रूव इट व्हाई इट इज डन. Usually it is not asked in the exam, but you should know why this is happening. See, अगर मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊं, व्हाट वी हैव डन, कोई भी आपको प्लॉट करने को देता है रूट एक्स, तो आप क्या करेंगे, एक्स इज अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है. यहाँ तक कि रूट 2 रूट 3 ये सब भी आप इसी से कर सकते थे प्लॉट. ठीक है. सो लेकिन डेसिमल वाले स्पेशली करे जाते हैं. तो यहाँ पे एक्स एल एस है और यहाँ पे क्या है, ये एक्स है, तो आपने क्या किया था फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ाया था, राइट, 1 सेंटीमीटर बढ़ाया था. फिर आपने इसका मिड पॉइंट निकाला था. ठीक है, मिड पॉइंट निकाला था और सेमी सर्कल बनाया था, ऐसा कुछ सेमी सर्कल बनाया था. ठीक है, प्रॉपर वाला. तो आपको ये प्रूव करना था कि ये जो लेंथ है, वट एवर इज द लेंथ, लेट्स से दिस इज, मैं कुछ भी नाम देता हूँ, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, ये लेट्स से इसको क्या नाम दे दें, डी नाम दे देते हैं. ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया मैंने अभी. ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि ये एक्चुअली रूट एक्स होता है. अगर ये होता है तो हो जाएगा प्रूव. ठीक है, अब वो कैसे होगा देखते हैं. मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि अगर ये मेरा, देखिए, ये जो रेडियस है पूरे एक्स, ये एक्स है. ठीक है, और ये पूरा x+1 है. आपने मिड पॉइंट x+1 का निकाला था, तो ये रेडियस होगा x+1/2 और ये भी पूरा क्या होगा x+1/2. राइट. सो ऐसी बात है कि हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं. ये भी रेडियस है बाय द वे, क्योंकि ये जो लेंथ होगी उतना ही आपने घुमाया है, तो ये भी रेडियस है. मतलब ये कितना है, ये x+1/2 है, क्योंकि ये भी x+1/2 है. ओ सी भी, ओ ए, ओ डी और ओ सी तीनों x+1/2. लेकिन हमें ये चाहिए, ये मिल गया. ये भी अगर कहीं से मिल जाए, देखो ये पूरा x+1/2 है, उसमें से 1 घटा दो, कि 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा. सो x+1/2 - 1 क्या निकालने के लिए, ओ बी निकालने के लिए, तो क्या आएगा देखें, एलसीएम 2 आया, x+1/2 - 2. सो x-1/2 आया, तो मतलब ये कितना है, x-1/2. अब पाइथागोरस थ्योरम से हम बी डी निकाल लेते हैं. अगर वो x आ गया रूट एक्स, तो मतलब प्रूव हो गया. तो देखते हैं बी डी का स्क्वायर क्या होगा, बेस का परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर. कि प्रूव कर रहे हैं एग्जाम में. ये अगर आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस प्लॉट करना आना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूँ. x-1/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, ए प्लस बी. ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी. ब्रैकेट लगाना ना भूलें क्योंकि बाहर माइनस साइन है वरना गलत हो जाएगा. सो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम जो है 2 होगा, तो x+1 प्लस x-1, 1 से 1 कैंसिल. इधर देखें 2 आया, x+1 माइनस एक्स माइनस माइनस +1. सो x से x कैंसिल. इधर क्या होगा, x+x 2x/2 और इधर क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई, बीच में मल्टीप्लाई होता है, 2/2. 2 से 2 कटा, इस 2 से 2 कटा, बचा क्या, x. ये बी डी स्क्वायर की वैल्यू आई है, देखिए बी डी स्क्वायर की वैल्यू x आई, तो बी डी कितना आएगा, रूट एक्स आएगा. हो गया प्रूफ. सो एक्चुअली वी हैव प्रूव्ड दैट दिस इज जस्टिफाइड, सही है जो होता है. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी आर प्लॉटिंग एनी रियल नंबर ऑन नंबर लाइन. This was the fifth exercise. Now let's move on to the last exercise. That is this exercise of the chapter. This is nothing but power and exponents which you have done with me before. So power and exponent क्लास 8 में एक चैप्टर होता था पावर एंड एक्सपोनेंट्स के ऊपर है. तो मैं पहले कुछ एक्सपोनेंट रूल्स, पावर एंड एक्सपोनेंट्स के थोड़े से रूल्स बताऊं. ठीक है. सो व्हाट आर द रूल्स, लेट्स अंडरस्टैंड. अगर मेरे पास बेस, कोई भी बेस है, ठीक है, बेस सेम है लेट्स से, तो पावर्स ऐड होती हैं. ये आपने पढ़ रखा है पहला रूल. मतलब जैसे 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2, तो पावर्स को आप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. सेकेंड रूल, अगर मेरे पास बेसेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाती है. जैसे मेरे पास 2 की पावर 3 है डिवाइड बाई 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 - 2 दैट इज 2 की पावर 1. नेक्स्ट रूल, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं. थर्ड, अगर पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है. जैसे 2 की पावर 3 उसकी पावर 2, 2 की पावर 3 × 2 दैट इज 6, 2 की पावर 6. और अगर मेरे पास ऐसा कुछ है कि ए की पावर
m है और कोई और नंबर है, बेस सेम नहीं है और उसकी भी पावर m है, इस बार पावर सेम है, तो इसको आप a इंटू बी की पावर m कर सकते हैं। मतलब जैसे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो इसको 2 इंटू 3 की पावर 3 कर सकते थे और वो 6 की पावर 3 हो जाता। ठीक है, जो 216 होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, अगला, अगर a की पावर m है और b की पावर m है तो इसको भी होल पावर m कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, तो आप इसको 2/3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। दैट इज वाज फिफ्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, सिक्स प्रॉपर्टी, which is anything raised to power 0 is 1। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, बेशक वो 9999 हो, उसकी पावर 0 इज 1। ओके, सो दैट एनीथिंग रेज टू पावर 0 विल बी 1। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अगर किसी की पावर नेगेटिव होती है तो आप इसको उल्टा करके उसकी पावर पॉजिटिव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 2 raised to power -3, it can be written as 1/2 की पावर 3। बाय द वे, अगर ये ऐसे लिखा होता 1/2 की पावर -3, साइड स्विच होती है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसको, तो ये भी पता होना चाहिए। पावर पॉजिटिव हो जाती है जब आप रेसिप्रोकल कर देते हैं, बाय द वे। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, दीज 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विच यू शुड नो before doing this exercise. This is a review of class 8 so that we don't have any problem by solving it. अब हम थोड़ा सा पावर्स भी पढ़ लेते हैं, कुछ वेरी पॉपुलर पावर्स जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं। पावर्स, सबसे पहले हम टू की पावर्स देख लेते हैं। टू की पावर्स क्या क्या है? देखिए, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 2 2 4, 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 जितना यूज होगा मैं उतना ही घटा रहा हूँ, 64, 2 की पावर 7 128, ये ऐसे यूज होगा ये बार बार ये सब। 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी होंगे क्वेश्चन अगर पता होगा। उसके बाद हम थ्री की पावर देखते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729। इतना वैसे जरूरी नहीं है, यहीं तक ही नीड है वैसे। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। ये 3 भी हो गया। 5 वाला, 4 की नीड नहीं है इतनी, दो दो तक की नीड है। चलो 4 की पावर 3 तक की, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। ठीक है, इतना आप करिए, मोर देन नफ है 4 का। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, इसका भी इतना ही नीड है। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, का इतना ही नीड है, ज्यादा नीड नहीं है। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 729 आई गेस। लेट्स एक बार चेक कर लेते हैं। 343 होता है। 7 for the 28 343, यस 343। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, ये भी पता होना चाहिए। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, और ज्यादा यूज नहीं होता है। और 10 का तो आपको पता ही है, 10 में इतनी दिक्कत नहीं होती। 11 का करना है तो 11 की पावर 1 11, 11 की पावर 2 121, 11 की पावर 3 1331। ये सारा ऐसा कॉपी में आपके होना चाहिए एक चार्ट सा, इससे बहुत ही जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस होंगी when we'll do the exampler also and some questions of RD and RS. Okay, now let's finish the exercise in the chapter for once for all for the 10 marks. So first question, देखो, what is the technique to solve this question? Find 64 raised to power half। आपको ऐसी पावर ढूंढनी है जिसमें पावर 2 बनता हो, जाके 2 से 2 कैंसिल हो जाए। 64 देखिए, किसी की पावर 2 में बनता है क्योंकि पावर 1/2 है, तो 8 की पावर 2 64 होता है। तो आप इसको क्या लिखिए, आप सीधा इसको ऐसे लिखिए कि 8 की पावर 2 और पावर की पावर ऐसे, इसको हमने ऐसे चेंज कर दिया। अब आपको पता है पावर की पावर होता है तो क्या होती है प्रॉपर्टी, चेक ओवर हियर। पावर की पावर में मल्टीप्लाई होता है, रिमेंबर, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस। 2 into 1/2, that is 1, so 8 की पावर 1 nothing but 8। सेकेंड वन, 32 की पावर 1/5, तो देखिए कोई नंबर जिसकी पावर 5 चढ़े तो 32 होता है। टेबल में देखिए, यस ये रहा, 2 की पावर 5 32 होता है। सो 2 की पावर 5 में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। सो विल राइट एज 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/5। जब पावर की पावर होता है तो फिर से वी गोना मल्टीप्लाई एंड वी गेट 2 की पावर 1, दैट इज। थर्ड पार्ट, 125 की पावर 1/3। सो आप क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3, दैट्स राइट, कि 5 की पावर 3 होता है 125। तो 3 से ही कैंसिल हो जाएगा फिर से, 5 की पावर 1 दैट इज 5। सो आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा, जो भी डिनोमिनेटर में होता है आपको उसमें कन्वर्ट करना होता है, राइट। नेक्स्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड का, 9 की पावर 3/2।
तो देखिए डिनोमिनेटर से लेना देना 2 किसकी पावर 2 में 9 आता है 3 की पावर 2 में। तो आप क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है 3 इंटू 3 सेकेंड पार्ट 32 की पावर 2/5 किसकी 5 होती है अभी देखा था 2 की पावर 5 फिर अगेन 2/5 तो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा हमारे पास ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 2 विच इज 4। द नेक्स्ट वन 16 की पावर 3/4 16 की पावर 3/4 सो विल हैव 4 की पावर 3/4 सॉरी 16 कब आता है 4 पावर में जब 2 की पावर चढ़ाते हैं राइट 2 की पावर 4 कितना होता है 16 चेक देखिए सो वी आर गोइंग टू सॉल्व सिंप्लीफाइड हियर पावर की पावर मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इज 8। लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट में इंटरेस्टिंग है कह रहा है कि 125 की पावर -1/3 सबसे पहले आप इसको अपोजिट करके लिखिए ऐसे रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव बताया था नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी सो 5 की पावर 3 होता है उसकी पावर 1/3 ये कैंसिल हुआ तो 1/5 की पावर 1 विच इज 1/5 ओनली किसी की पावर 1 इटसेल्फ देता है क्योंकि एक ही बार मतलब वो लिखा जा रहा है। अगला थर्ड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 की पावर 2/3 को वी आर मल्टीप्लाइंग विद 2 की पावर 1/5 सो व्हेन वी मल्टीप्लाई द पावर्स गेट एडेड क्योंकि बेसिस आर सेम so when we add them, what how we gonna do? We gonna take the LCM. अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता सिंपल ट्रिक क्या है अगर आपको सॉल्व करना है एक सिंपल ट्रिक बता दो वैदिक मैथ से इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 15 इसको इससे कीजिए 10 इसको इससे कीजिए 3 13/15 सीधा कुछ एलसीएम एलसीएम का चक्कर नहीं तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये बटरफ्लाई मेथड कहलाता है क्योंकि आप देखिए एक तरीके से बटरफ्लाई बन रहा है जब हमने इसको सॉल्व किया this and this kind of right so this is a Vedic math trick. Okay, next, let's move on to the next part, which is the second part, which is 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर 7 so 1 की पावर 7 और 3/3 की पावर 7 राइट ऐसे बढ़ जाता है पावर रिमेम्बर उल्टा भी होगा ठीक है तो उल्टा भी किया हमने 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा और पावर की पावर में मल्टीप्लाई होता है 7 3 21 दैट्स द सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट दे आर गेटिंग डिवाइडेड 11 की पावर हाफ और 11 की पावर 1/4 बेस सेम डिवाइडेड तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। अब फिर से आप वैदिक मैथ्स लगाते हैं 4 2 जा 8 4 1 जा 4 2 1 जा 2 सो कितना आएगा 2/8 इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 1/4 सो 11 की पावर 1/4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट फोर्थ लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 8 की पावर 1/2 देखिए मैंने बताया था कि अगर पावर सेम हो नंबर्स अलग हो गए सर तो ऐसे जोड़ के आप अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं राइट यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है ध्यान से देखिए 7 की पावर हाफ और 8 की पावर हाफ दोनों मल्टीप्लाई में है तो 7 और 8 को आप ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखिए उसकी पावर हाफ चढ़ा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 56 की पावर हाफ इन फैक्ट एंड दैट विल द आंसर एंड दैट इज द chapter itself. Now in the next session we are going to do the example of this chapter which is very important because एनसीईआरटी से नहीं बनेगा बस एग्जाम्पलर भी करना होगा आपको एनसीईआरटी में इतने आसान क्वेश्चंस हैं वी हैव टू डू एग्जाम्पलर ऑल्सो हम उसमें एमसीक्यूज करेंगे काफी 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चंस करेंगे एंड विल फिनिश दिस चैप्टर फाइनली फॉर 10 मार्क्स ओके आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन देन थैंक यू बाय।